Okay, hello all. Welcome back. Now we are here with some more MCQ problem too for practice. Okay, so right now take an electric potential topic, and further topics will be available as soon as possible. Okay, now the first question here says that the electric charge in uniform motion produces an electric field only. Magnetic field only, both electric and magnetic field, neither electric nor magnetic field. Okay, I would like to give some note here regarding this particular question. Okay, now the first note will be like this: charged particle at rest. Okay, charged particle at rest. What it produces? It produces electric field only. Charged particle at rest produces electric field only. Okay. Now, if we talk about second point, that charged particle in uniform motion. Okay, charged particle in uniform motion. In uniform motion, that means constant velocity, constant velocity, and we can say unaccelerated motion, unaccelerated motion, right? Constant velocity, unaccelerated motion will give both electric and magnetic field. Okay, and the third point which I would like to give in this particular part, uh, accelerated motion, charged particle in accelerated motion. Okay, what it will produce? Both electric and magnetic field, both electric and magnetic field, and also radiates energy in form of EM waves, in form of EM waves. Okay, so these are some points which are important regarding this question. So whenever the charged particle is at rest, it does not produce any magnetic field; it produces only electric field. When the charged particle is in uniform motion, that means constant velocity, unaccelerated motion. अगर velocity constant रहेगी तो acceleration zero होगा, both electric and the magnetic field आ जाएगी. और अगर तुम्हारे पास जो है accelerated motion आता है, ठीक है, मतलब velocity change है, तो E, B and also radiates energy in the form of EM waves. आगे आप पढ़ेंगे EM waves का, तो उसमें ये आता है कि accelerated charge particle, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि यहाँ पे मोशन पे है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? इसका आंसर बनना चाहिए सी. ओके, so this should be the answer. Next part. Next we have figure shows a charged conductor resting on an insulating stand. If at the point B the charge density is sigma. Okay. Now how this particular conductor is made? Now let us understand that this is the part. Okay. Now if we join this portion to this part, and if we join this portion to this part, fine. So what we can say now this is the shaped conductor looking like. Okay, now this is the center of the P and this is the center of the Q, right? So this we can say an R, this we can say capital R. अब चूंकि ये तुम्हारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर इज लाइक, चार्ज्ड कंडक्टर इज लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस. चार्ज कंडक्टर इज लाइक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. इक्विपोटेंशियल का वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल वुड बी सेम, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, सेम एट ऑल पॉइंट्स. पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर जगह पे पोटेंशियल तो सेम, ठीक है. तो इसने कहा ग्रेटर देन वी वाला तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ठीक, सेम होगा पोटेंशियल. अब दूसरी बात क्या बोली इसने? इसने कहा कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएं। हमको ये पता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, हमेशा बाहर चार्ज होता है। ठीक है, हमेशा कहाँ पे चार्ज होता है, हमेशा तुम्हारे पास जो है बाहर चार्ज होता है। इसने कहा अब अगर बाहर चार्ज होता है तो बाहर चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसने कहा हाँ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, अब इसने ये कहा कि देखिए अगर हम पॉइंट पी की बात कर रहे हैं और पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं, पॉइंट क्यू पे तुम्हारे पास ज़्यादा तुम्हारे पास चार्जेस प्रेजेंट हैं। ठीक, ज़्यादा तुम्हारे पास चार्जेस प्रेजेंट है, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसे निकलेगा, नॉर्मल निकलता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे निकलेगा और नॉर्मल ऐसे निकलेगा। यहाँ पे भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तुम्हारे पास कम है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कम है इस एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के कंपेरिजन में कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक। फिर आया तुम्हारे पास सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा पी पे है तुम्हारे पास कितना, क्यू अपॉन 4 पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर। अगर हम मान लें कि एक फुटबॉल वगैरह रहा हो ऐसा सॉलिड टाइप का। ठीक है, तो सिग्मा पी ने कहा हम तो आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो सिग्मा क्यू ने कहा फिर इसका मतलब हमको भी आर से मतलब होगा, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास सिग्मा पी से कम। या फिर ऐसे देख लो ना कि इस एरिया में देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। ठीक है, और इस एरिया में देखो कितनी कम भीड़ है। जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहां ज्यादा चार्ज होंगे, जहाँ कम भीड़ होगी वहां कम चार्ज होंगे। डेंसिटी का मतलब एक तरीके से होता है भीड़, क्राउड। ठीक है, तो जहाँ कहाँ क्राउड ज्यादा है, पी में ज्यादा है, क्यू में कम क्राउड है। तो इसका मतलब है कि जो सिग्मा है वो तुम्हारे पास क्यू में जो सिग्मा रहा होगा वो सिग्मा पी से कम होगा। ठीक, तो इसमें का सिग्मा भी कम है और ई भी कम है, बट पोटेंशियल तो सेम है। तो इस हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए, इसने कहा कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है। इसने कहा कि क्या है, एक हॉलो मेटल स्फीयर है। अब ये हॉलो मेटल स्फीयर का हमको रेडियस दे रखा है, कितना, 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। इस चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इतना। इसने कहा कि VA जो है वो तुम्हारे पास +10 वोल्ट है। ठीक है, दी पोटेंशियल इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा। अब इसने कहा कि O सेंटर है। इसने कहा कि V तुम्हारे पास जो आउटसाइड पे होता है, V तुम्हारे पास आउटसाइड पे होता है, मतलब कि ये अगर पॉइंट ले लें, R दूरी हम लोग ले लें कोई। ठीक है, तो ये होता है K तुम्हारे पास Q अपॉन R। ठीक है, और अगर हम बात करें तुम्हारे पास की V सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, ये होता है KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, V इनसाइड पे कितना होता है, V इनसाइड पे होता है KQ अपॉन तुम्हारे पास कितना, कैपिटल R। मतलब अंदर और तुम्हारे पास सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, आउटसाइड पे पोटेंशियल जो है वो तुम्हारे पास कम होता चला जाता है। इसने कहा ठीक है, इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि हॉलो मेटल सरफेस है जिसका रेडियस इतना है, स्टार्ट टू सो दैट द पोटेंशियल उसके सरफेस पे इतना है। सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है। अब इसने कहा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा। ठीक, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे भी वही होगा। क्यों, क्योंकि जो V सेंटर पे होगा, ठीक है, यही V तुम्हारे पास इनसाइड पे होगा, यही V जो इनसाइड पे होगा, यही V तुम्हारे पास किस पे होगा, तो सरफेस पे हो जाएगा। आउटसाइड पे तुम्हारे पास कम हो जाएगा। ठीक है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए आंसर इसका। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा तुम्हारे पास कितना, 10 वोल्ट होगा। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारे पास, किसको 3.1 बोल देते हैं। ठीक है, तो 3.1 का हो गया ए। अब देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन 3.2 इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल, पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम ग्राफ बना लें, अगर हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, इसलिए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, हमने आपको सिखाया भी था ये वाला पार्ट। इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास सेंटर है। ठीक है, अब इसने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये कितना है, R इक्वल्स टू 0, ये कितना है, R इक्वल्स टू कैपिटल R, और ये वाला जोन कितना है, R ग्रेटर देन R, ये वाला जोन कितना है, R लेस देन R। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ऐसे आ गया। ठीक है ना, तो इसने इस तरीके से आ गया कि अगर आप चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की बात करेंगे तो इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा, आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसने कहा कि इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर पोटेंशियल कैसा रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ठीक है, सब एक ही तरीके के सवाल हैं जो अलग अलग फॉर्म में पूछे चले आ रहे हैं।
ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास आएगा। और देखते हैं जरा क्या बोला है इसने। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर बोला है यहाँ पे कि a charge of 10 की -9 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द ईच ऑफ द 64 ड्रॉप्स। ठीक है, अब इसने कहा कि ये तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन काफी गलत होने कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कि पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉपलेट, पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉपलेट कितना है, तुम्हारे पास v है, लेट्स सपोज हमने v ले लिया, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास कितनी है, टोटल 64 ड्रॉपलेट्स है, टोटल तुम्हारे पास कितनी है 64 ड्रॉपलेट्स है। इसने कहा q क्या है, इसने कहा q है तुम्हारे पास c इंटू वी, ये तो हो जाएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास कितना स्मॉल r इंटू तुम्हारे पास v, ये वैल्यू हो गई। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा q डैश कितना होगा, इसने कहा n इंटू क्यू होगा, तो इसने कहा n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास r इंटू वी हो गया। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा चूंकि ये लोग तुम्हारे पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप मिलेंगे आपस में, तो वॉल्यूम का तो कंजर्वेशन होगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन इंटू 4/3 तुम्हारे पास पाई तुम्हारे पास कितना जो है आर क्यूब, इसको हमने एन ले लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन तुम्हारे पास आर क्यूब, तो आर इज इक्वल्स टू कितना कैपिटल एन की पावर 1/3 तुम्हारे पास कितना आर, ये हो गया रेडियस की वैल्यू, ठीक है। न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर है, ठीक है, तो कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 और तुम्हारे पास आर है, ठीक है। सो क्यू डैश इज इक्वल्स टू होगा सी डैश वी डैश, उस हिसाब से देखा जाए तो एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 इंटू आर, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना वी डैश। सॉल्व किया उन्होंने यहाँ पे, तो उन्होंने सॉल्व किया तो क्या मिला, सॉल्व किया तो उन्होंने क्या मिला भाई, सॉल्व किया हमने तो ये कहा 4/4 कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, तो एन की पावर 1 माइनस 1/3 इंटू वी इक्वल्स टू वी डैश, सो वी डैश इक्वल्स टू हो गया एन की पावर कितना 2/3 इंटू वी, इस तरीके से निकाल। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको कोई याद नहीं करना है, मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा क्या बैठ कर इसको रटो बैठ करके, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, बस आप इसको तरीका सीख लो भाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये आना, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देन दे आर देन कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड इट्स पोटेंशियल, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए, ये तुम्हारे पास किसका है, ये तुम्हारे पास बिगर ड्रॉप का है, ये किसका है, ये तुम्हारे पास स्मॉलर ड्रॉप का है। हमने कहा ठीक है, तो हमने निकाला, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.1 को सॉल्व कर लेते हैं, 4.1 को, अब 4.1 को सॉल्व किया तो कितना आया, तो उसने कहा कि 4.1 में तुम्हारे पास दे रखा है कि वी डैश इज इक्वल्स टू 64 की पावर 2/3 इंटू वी, अब ये तो हो गया 4 की पावर 3 इंटू 2/3, ठीक है, ये हो गया के तुम्हारे पास क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर हो गया फॉर्मूला, जो तुम्हारे पास एक ड्रॉप का फॉर्मूला होगा। इसने कहा हाँ, ये हो गया 4 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू तुम्हारे पास क्यू की वैल्यू कितना 10 की पावर -9, ठीक, और तुम्हारे पास आर की वैल्यू कितना 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया था बस 16/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 2, 2 8 जा 9 8 जा कितना 72 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट, ये आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 72 नहीं दे रखा, 7.2 की फॉर्म में दे रखा है, 7.2 में कर लो, डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 की पावर 3 आ गया, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, आंसर कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए आंसर, ठीक, तो 4.1 में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला 4.2 है। अब इसने क्या बोला 125 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, इसने क्या बोला 125 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, इसने कहा एन की वैल्यू कितनी है 125, तो वी डैश की वैल्यू कितनी होगी एन की पावर 2/3 इंटू वी, है ना, तो ये कितना हो गया 125 की पावर 2/3 इंटू बस 50, 5 की पावर 3 इंटू कितना 2/3 इंटू कितना 50, 3 और 3 कैंसिल, ये हो गया 25 इंटू तो कितना 50, हो गया 125 और 0 1250 लौट आएगा आंसर, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप फॉर्मूला बैठ के रटो, लेकिन अब भैया देखो होगा ये ऐसे, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला ध्यान रख पाते हो, अपने नोट बनाओगे छोटे छोटे, उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, 3 charges 2q minus q are at the triangle, at the vertices of the triangle,
ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। इसने कहा कि यहाँ 2q है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे -q है। कभी भी सवाल आए तुम चार्जेस को देख लो, सबको टोटल करके जीरो आ रहा है तो पोटेंशियल तो देखो जीरो ही होगा आराम में, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोला है, ठीक, इसने सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोला है, मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे लिया तो इसकी वजह से तो हमने यहाँ पे कोई क्यू नॉट रखा होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे E1 यहाँ पे आ गया होगा, ठीक, और E2 तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और E3 तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल मारेंगे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव अट्रैक्शन मारेंगे। इसका मतलब E1 यहाँ पे है, ठीक है, E2 यहाँ पे है, और E3 तुम्हारे पास यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारे पास क्या? नॉन जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, ठीक। पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल में तो कुछ नहीं करना होता है, हमें सारे चार्जेस का सम देखना होता है। अगर आप सारे चार्जेस का यहाँ पे सम देख लें, ठीक है, अगर आप सारे चार्जेस का सम देख लें तो वो हो जाएगा तो आपको कितना? जीरो, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? फील्ड तुम्हारे पास नॉन जीरो है और पोटेंशियल तुम्हारे पास क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि आप उसमें कुछ कोई दिक्कत आ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। Okay, now the next question we have here is, now this asks for um, the electric potential at a point on the axis of an electric dipole depends on the distance r. So first of all, understand this, that this is the electric dipole. This is minus q charge and this is the plus q charge. Okay, this is the point P, which is at a distance of r. This is your L. This is the center, and this is also L. Okay, and this is the theta. If we mark the direction of the electric dipole, this is P vector, right? So 1 upon 4 pi epsilon naught, okay, and PR cos theta, okay, 1 upon 4 pi epsilon naught PR cos theta upon R cube. And if we write it as vector form, so K P vector dot R vector अपॉन आर, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। And this is the formula. Now they are asking for the electric potential at any point on the axis of the dipole. At any point का मतलब है जनरल पॉइंट की बात कर ली, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, एट अ डिस्टेंस r, अब r दूरी पे होगा तो क्या होगा? v is inversely proportional to what? r स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया v पे, ठीक। अब इसने क्या बोल दिया कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम एंड द मिनिमम। अब समझिए मैक्सिमम की क्या बात है इसमें। तो इसने कहा कि इफ थीटा तुम्हारे पास जीरो हो तो v इज इक्वल टू आएगा के पी कॉस तुम्हारे पास जीरो अपॉन आर स्क्वायर, के पी, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट आती है बात तुम्हारे पास मिनिमम की। इफ थीटा तुम्हारे पास 180 डिग्री हो तो v इज इक्वल टू के पी कॉस कितना 180 अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस 180 की वैल्यू -1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस ऑफ द के पी अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास है ये कहलाएगा क्या? मैक्सिमम। ये जो तुम्हारे पास है ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या? ठीक है। तो थीटा जीरो पे तुम्हारे पास मैक्सिमम कहलाता है, थीटा जीरो पे 180 पे तुम्हारे पास मिनिमम कहलाता है। उसने पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम, तो जीरो पे तुम्हारे पास मैक्सिमम कहलाएगा, 180 पे तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? मिनिमम कहलाएगा, ठीक है। तो उससे ये जनरल फॉर्मूले से ये दो पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। इन अ मिरेकल्स oil drop experiment, an oil drop carrying a charge Q, okay, now understand this particular part. जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये कोई मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ पे लिया और हमने क्या बताया कि ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज Q इज हेल्ड स्टेशनरी, ओके। सो लेट अस कंसीडर ये केस कि भाई ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके,
ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या बोला इसने, इसने कहा कि यहाँ पे चार्ज Q है। ठीक, इस Q चार्ज को तुम्हारे पास स्टेशनरी जो है रखा गया है, इसका मतलब mg नीचे लग रहा होगा और इस पे लग रहा QE जो है वो तुम्हारे पास ऊपर होगा। तो QE की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, ये हो जाएगी तुम्हारे पास mg के बराबर। बात समझिए, QE की वैल्यू होगी किसके बराबर, mg के बराबर। ठीक, अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, d है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस d है, तो मैं Q इज इक्वल्स टू Q इंटू वी अपॉन डी लिख लूंगा, किसे, तुम्हारे पास m इंटू जी को। ठीक, यदि मैं ये बात कहता हूँ कि ये तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल ये रहा, ठीक, और इसकी अगर रेडियस तुम्हारे पास कितनी है r, ठीक है, लेकिन अब हम ड्रॉप को हाफ द रेडियस करेंगे। ठीक है, हाफ द रेडियस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये तुम्हारे पास कोई ड्रॉप रहा और अब जो इसका रेडियस है वो तुम्हारे पास r/2 है। बाकी कंडीशन तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है ना, और चार्ज वगैरह है, वो तो हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि Q डैश इंटू वी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू एम डैश इंटू तुम्हारे पास डी। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 बनाई और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाई। अब देखिए हमने क्या बताया, हमने कहा कि डिवाइडिंग व्हाट, डिवाइडिंग 1 बाय 2, राइट। सो Q इंटू V अपॉन D इज इक्वल्स टू M इंटू G अपॉन Q डैश इंटू V डैश अपॉन D इज इक्वल्स टू M डैश इंटू G। G से G कैंसिल हुआ, D से D कैंसिल हुआ। ठीक, और क्या है, अब Q और तुम्हारे पास Q डैश, इन्होंने कहा कि सर कैपिटल Q को Q ही रहने देते हैं, V की वैल्यू 2400 हो गई है। ठीक है, Q डैश की वैल्यू तो निकालनी ही है, V डैश की वैल्यू 600 है, M की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, है ना, डेंसिटी इंटू तुम्हारे पास जो है वॉल्यूम, राइट। एंड 4/3 पाई तुम्हारे पास कितना, स्मॉल आर क्यूब इंटू रो जी और रो जी कैंसिल। ठीक, और 600 इंटू तो बस 4 हो गया। इसने कहा हाँ ठीक है, हो तो गया। फिर इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि देखो ऐसा है, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Q अपॉन तुम्हारे पास Q डैश इंटू 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखा जाए अगर तो 4/3 कैंसिल हो गया है, ये r क्यूब है और ये r/2 का होल क्यूब है, राइट। तो Q अपॉन Q डैश इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब हो गया, ये दोनों कैंसिल हुए, 4 2 जा हो गया और Q डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई Q/2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं भाई, ठीक है, और आपको इन्हें तैयार करना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, तो Q डैश की वैल्यू Q/2 हो गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहा गया है कि टू स्क्वायर्स ऑफ रेडियस A and B आर चार्ज्ड, टू स्क्वायर ऑफ रेडियस A and B आर चार्ज्ड एंड दे आर ज्वाइंड बाय वायर। ठीक है, दो स्क्वायर्स जिनका रेडियस तुम्हारे पास जो है A है, इनका रेडियस तुम्हारे पास A है, ठीक है, और B है, इनको चार्ज किया गया और वायर से ज्वाइन कर दिया गया। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो कि व्हेन टू चार्ज्ड स्क्वायर्स, इसने क्या बोला, व्हेन टू चार्ज्ड स्क्वायर्स आर ज्वाइंड बाय वायर, स्क्वायर्स आर ज्वाइंड बाय वायर, ठीक है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, चार्ज विल फ्लो until potential becomes equal to each other. Okay, so K QA upon RA is equals to K QB upon RB. Okay, अब इसने कहा कि ठीक है, तो QA upon QB is equals to RA upon RB A upon B। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा था रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर चाहिए। ठीक, तो भाई स्फीयर A स्क्वायर बी, ओके, सो के क्यू ए अपॉन आर ए स्क्वायर और के क्यू बी अपॉन आर बी स्क्वायर। ठीक, सो क्यू ए अपॉन क्यू बी मतलब कि आर ए अपॉन आर बी इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ,
ये हो गया है आर बी अपॉन आर ए, ठीक है। अब ये आर बी अपॉन आर ए, ठीक है, वही आर बी की वैल्यू है बी और आर ए की वैल्यू है ए, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर यहाँ पे आंसर होना चाहिए यहाँ पे बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने आंसर दे दिया क्या, ये बी, ठीक। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे एग्जाम में। अ क्यूब ऑफ अ मेटल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, ये एक अच्छा सवाल, इसको देखिए जरा। इसने कहा कि एक आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, एक आपके पास कोई क्यूब है और इस क्यूब में क्या दे दिया गया है, इस क्यूब में दे दिया गया है आपके पास पॉजिटिव चार्ज की, ठीक, समझेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सब सरफेस पे पड़ा होगा, है ना, सरफेस पे सब पड़ा होगा। अब हमने कभी भी क्यूब की एनालिसिस तो करी ही नहीं है, हमेशा करी है किसकी, स्फीयर की एनालिसिस करी, क्यूब की तो करी ही नहीं है, ठीक। तो ये सब कुछ सरफेस पे पड़ा हुआ है, सरफेस पे सब कुछ पड़ा हुआ है। अब अगर सरफेस पे पड़ा हुआ है तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, पर 100% सरफेस के नॉर्मल निकलेंगी, 100% क्या होगा, सरफेस के जो है नॉर्मल निकलेंगी, ठीक है। तो अब इसने कहा कि चूंकि ये मेटल है, मतलब कंडक्टर है, तो चार्ज अंदर तो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। तो फिर इसने कहा कि फॉर द अबव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द सरफेस ऑफ द क्यूब तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज तुम्हारे पास जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द क्यूब, अब इसमें तो हमको वेरिएशन पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हम यहाँ पे दे पाएंगे, क्योंकि हम डी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसने कहा कि डी के बारे में ये कह सकते हैं सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज बोल रहा है, आप इसको मेटल मान के चल रहे हैं ना, तो अंदर तो काम ही खत्म है, जीरो है मामला। उसने कहा ठीक है, उसने कहा हाँ अंदर कोई और कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं, कोई और तो तुम्हारे पास कोई कैविटी वगैरह नहीं, तो ठीक है उसको तो मान सकते हैं। उस हिसाब से आंसर बनेगा क्या, सी बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, सी। अगला देख सकते हैं, अगला क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है कि इन अ सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पॉइंट्स हैविंग जीरो पोटेंशियल, ऑल पॉइंट्स हैविंग जीरो पोटेंशियल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो जीरो है, ठीक है। अब इसने कहा कि ये सर्कल है, ये रहा तुम्हारे पास इनसाइड जोन और ये रहा तुम्हारे पास आउटसाइड जोन। पॉइंट्स इनसाइड एस हैव पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक। अब S have positive potential and points outside S have negative potential. A positive charge which is free to move is placed inside. ठीक है, तो इसने कहा कि सर्कल S था, इसके अंदर रख दिया एक तुम्हारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इट विल रिमेन इन तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे जाके रहने की बात तब आएगी जब हमको ये पता चले कि ये कहाँ है, ये नहीं बताया इसने, तो फिर ये बात तो इनवैलिड सी हो जाएगी। इट कैन मूव इनसाइड एस बट इट कैन नॉट क्रॉस एस। देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे तो वो जा ही सकता है, तो ये तो बात गलत हो गई। इट मस्ट क्रॉस एस एट सम टाइम, इट मे मूव बट विल अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों भाई, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे, तो रिटर्निंग का केस क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आंसर होगा क्या, सी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्या बोल रखा है इसने, इसने कहा कि द टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक, सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, प्लस क्यू एंड तुम्हारे पास क्या, एंड माइनस क्यू एट द पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन द मिडवे बिटवीन देम। तो देखो हमने ये तो बताया था कि ये जोन नंबर 1 है, ये जोन नंबर 2 है, और ये क्या है, ये जोन नंबर तुम्हारे पास क्या है, 3 है, ठीक। अब हमने ये बताया था कि इफ तुम्हारे पास एंड पॉइंट चार्जेस, ने बताया था कि तुम्हारे पास इफ एंड पॉइंट चार्जेस, इफ एंड पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ये Q1 है, लेट्स सपोज ये Q2 है, इसका प्रोडक्ट जो है अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एनी पॉइंट हैविंग, एनी पॉइंट हैविंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास 0, ठीक, नेट तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स 0 विल लाई इन क्या, जोन 2, ठीक। मतलब ये कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब Q1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, Q2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर Q1 भी लेस देन 0 होगा, Q2 भी लेस देन 0 होगा, है ना।
मान लो कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो गया है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, वहां पर लेस देन 0 हो गया। अगर लेस देन 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि एनी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एनी पॉइंट एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास 0 हो या फिर नेट फोर्स तुम्हारे पास 0 हो, ठीक है, विल लाई इन ईदर तुम्हारे पास जोन तुम्हारे पास 1, ठीक है, और 3, ठीक है। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से कम है तो जोन 1 आंसर होगा, है। Q1 का मैग्नीट्यूड अगर Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो जोन तुम्हारे पास 3 आंसर होगा। पसंद है? अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होने पे, तो जोन 2 पे आंसर आने वाला है, ठीक है, जोन 2 पे आंसर आने वाला है। और अगर Q1 Q2 प्रोडक्ट लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जोन 1 या जोन 3 पे आंसर आने वाला है। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा उसकी तरफ लाई करेंगे। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है Q2 से तो जोन 1 में आंसर दे देना, नहीं तो जोन 3 में आंसर दे देना, ठीक है, इस तरीके से होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारे पास सर्टेन डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज ये दोनों तुम्हारे पास दूरी r डिस्टेंस पे है। अब इसने कहा द पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में अब Q1 और Q2 दोनों का जो वैल्यूज है वो एक्चुअल में प्लस Q और माइनस Q की है। प्लस Q और माइनस Q की है, मतलब Q1 Q2 लेस देन 0 वाला केस है। तो जोन 2 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने साफ से कह दिया कि हम तो 0 होंगे नहीं। अब इन दोनों चार्जेस का सम देख लो, 0 आ रहा है तो पोटेंशियल तो 0 ही होगा, है ना, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाली है, पोटेंशियल 0 100% यहाँ पे होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 और पोटेंशियल तो यहाँ पर 0, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने यहाँ पे ये बोला, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से यहाँ पे क्या बोला है इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, आर प्लेस द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, राइट। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे रखें, कितना, एक रखा है प्लस क्यू, एक रखा है माइनस क्यू, एक रखा है प्लस क्यू, एक रखा है माइनस क्यू। जब भी चार्जेस दिए होंगे, ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिए होंगे उस सीक्वेंस में अपने डायग्राम में बनाना, ये नहीं अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले लिया, ऐसा मत करना, ठीक। अब इसने कहा सेंटर ऑफ द स्क्वायर, अब इन सबका सम कर लो चार्जेस का, ठीक है। इसने कहा कि सम ऑफ चार्ज देखते हैं, सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज तो आपस कितना है, समेशन ऑफ द क्यू वो तो आ रहा है 0, इसका मतलब पोटेंशियल तो हो गया 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू नॉट रखोगे, इधर अट्रैक्ट करे, इधर तो आप रिपेल करेगा, है ना, इसकी सी क्यू रे से, और एक रे से क्या होगा, एक रे से भी रिपेल करेगा। यहाँ पे इधर इधर अट्रैक्ट करेगा किसकी रे से, बी रे से, और यहाँ पे डी रे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सबका बराबर आएगा वैल्यू, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे है, सेंटर पे है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वापस हो जाएगी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्या, 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है तुम्हारे पास ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आ सकते हैं और ये आपको आना चाहिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमसे कहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x, ठीक है। सो V यहाँ पे दे रखा है 12.1, सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक। तो इसने कहा V दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 10x माइनस 9, ठीक है। इसने कहा E होता है माइनस ऑफ द डेल बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स तुम्हारे पास आई कैप, प्लस माइनस होता है डेल वी बाय तुम्हारे पास डेल वाई तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ डेल वी बाय तुम्हारे पास डेल जेड तुम्हारे पास कितना, ये हो गया के कैप, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इसने कहा कि डेल वी बाय डेल एक्स, इसका मतलब होता है कि वाई और जेड को यहाँ पे हम कांस्टेंट मान रहे हैं, एक नंबर की तरीके से मान ले रहे हैं, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्या, रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास एक्स, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा लॉ, तो माइनस डेल बाय डेल एक्स किया हमने, और ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 10x माइनस 9, ठीक। ये कितना आ गया, ये आ गया 10x प्लस तुम्हारे पास 10, ठीक। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 10x प्लस 10 तुम्हारे पास आई कैप प्लस माइनस ऑफ 0 जे कैप प्लस माइनस ऑफ 0 के कैप। क्यों, क्योंकि डेल वी बाई डेल वाई जब करोगे तो वाई नहीं है, सब कांस्टेंट है, काम खत्म। डेल वी बाई डेल जेड करोगे तो जेड है ही नहीं, कांस्टेंट है, सब काम खत्म, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास कितनी, माइनस ऑफ 10x प्लस तुम्हारे पास 10 आई कैप आई। पर इसने पूछा था एट 1, इसने कहा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास एट तुम्हारे पास 1 एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास किस पे, इसने कहा एक्स इक्वल्स टू किस पे, 1 पे, ठीक। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ द 10 इंटू 1 प्लस तुम्हारे पास 10 आई कैप, ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ द 20 आई कैप, ठीक है। अब इसने कहा कि हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें अगर मैग्नीट्यूड चाहिए है तो -20 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास
0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया यहाँ पर कितना 20 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से निकालें, ठीक। यहाँ पे वोल्ट पर मीटर दिया है, उसने काम तो जानते ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, एक तो न्यूटन पर कूलम और एक होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो जैसे सवाल नंबर 12.2 की बात कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है, इसने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 12.2, ठीक। इसने क्या दे रखा है, V इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ दी 5x प्लस तुम्हारे पास 3y प्लस तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 15z, ठीक। अब मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि ई एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ द डेल वी बाई डेल एक्स होता है, ई वाई जो होता है वो माइनस ऑफ द डेल वी बाई डेल वाई होता है, ठीक। और ई जेड जो होता है वो माइनस ऑफ द डेल वी बाई कितना होता है डेल जेड होता है, राइट। तो मैं ई एक्स को लिखा माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना 5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट ऑफ 15z, ठीक। तो माइनस ऑफ कितना 5 प्लस वहाँ पर 0 प्लस वहाँ पर 0, ये कितना हो गया, ये हो गया -5 हो गया, ठीक है ना। अब हम ई वाई को निकालेंगे तो सिमिलरली ई वाई कितना आएगा, माइनस ऑफ वहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ ये तो सॉरी -5 था, -5 था, माइनस होगा तो ये जगह प्लस हो जाएगा, ठीक। ये जगह माइनस ऑफ तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। ई जेड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट 15 हो जाएगा। जब आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपसे कहा कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले तो हम जरा वेक्टर फॉर्म में तो बना तो लें पहले। तो ई वेक्टर हो गया क्या, ई एक्स, ई एक्स का मतलब कितना हो गया, ई एक्स का मतलब हो गया है तुम्हारे पास 5 i कैप, ठीक है, -3 तुम्हारे पास j कैप, ठीक है, माइनस रूट तुम्हारे पास 15 कितना तुम्हारे पास k कैप, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे जो है आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत, निकाल लेते हैं, उसका तो कुछ बताया नहीं इसके अंदर। इसने कहा कि ठीक है सर, तो जरा इसको देख लेते हैं। अंडर रूट का कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना -3 का स्क्वायर प्लस कितना अंडर रूट ऑफ 15 के माइनस का स्क्वायर कितना, ये देखें ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास कितना अंडर रूट 49, आंसर कितना आया, आंसर आया 7, ठीक, 7 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो गया कितना 7। इसको देख लीजिए 12.3 को देख लीजिए क्या है, ठीक है। अब मैं मल्टी क्वेश्चन एक ही पार्ट में करवा रहा हूँ ताकि क्या नाम है आपको कैटेगरी का आइडिया लगता चला जाए कि इस तरीके से पूछेंगे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ दे रखा है v इक्वल्स टू 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर, ठीक। अब आपने कहा कि देन द फोर्स एक्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम चार्ज प्लेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। उसने कहा ठीक है पहले तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो हमने कहा ई एक्स निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स कितना v, ठीक है। अब उसमें देखो, इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका तो 0 हो गया, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका बचा 6 माइनस x का करना है, x हो गया तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो हो जाएगा 8 ओनली। उसने कहा हाँ, तो ये हो जाएगा 8 तुम्हारे पास वाई स्क्वायर, ठीक। अब ई वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, ई वाई की वैल्यू निकालते हैं, माइनस ऑफ डेल जी बाय डेल जेड माइनस डेल वी बाय डेल जेड, तो इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, जेड का मतलब इन दोनों का आएगा, तो कितना आ गया 6y माइनस 4 टू 8z, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास 6y प्लस 8z। अब इन्होंने कहा कि सॉरी y पे निकालना है, ये काम करते हैं, ये तो z पे निकाल ही दिया है, ठीक है। तो अब जब z पे निकाल ही दिया है तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं इधर, ठीक है, EZ निकाल दिया हमने, ठीक है। तो माइनस ऑफ द डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। अब माइनस किया हमने, और अगर हमने यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ गया है तुम्हारे पास, ये आ गया है तुम्हारे पास इनका 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 0, 6yz दिस, तो 6y माइनस 4 टू 8z आ गया, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारे पास अभी इसने कहा ठीक। अब हम ई वाई निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ द डेल वी बाय डेल एक्स होता है, ठीक, माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना डेल वी बाय डेल एक्स, सॉरी डेल वी बाय तुम्हारे पास डेल वाई होता है, ठीक। अब देखो ये तो हमारे 0 हो गया, ठीक, और तुम्हारे पास ये 0 हो गया। अब माइनस 8xy करके कितना होगा, माइनस तुम्हारे पास 16x, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास कितना 8, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कितना 6z, माइनस 16x माइनस 8 प्लस 6z, ये तुम्हारे पास आ गया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये आ गया, इसने कहा अब लिखो जरा ई वेक्टर, तो हमने लिखा माइनस ऑफ द 6 प्लस ऑफ द 8y स्क्वायर कितना आई कैप प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ द 6y प्लस तुम्हारे पास 8z कितना तुम्हारे पास j कैप, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ द 16,
सॉरी ये तुम्हारे पास हो जाएगा कितना k कैप, ये EZ है, ठीक है, हो जाएगा k कैप, ठीक है, प्लस ऑफ द 16x प्लस ऑफ द 8 माइनस ऑफ द 6z, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा j कैप, ठीक है, i कैप तुम्हारे पास जो है j कैप और प्लस तुम्हारे पास जो है कितना k कैप। इस तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे जो है आ जाएगी, ठीक। अब देखिए जरा, मैंने सॉल्व किया तो मैंने कहा कि एट ओरिजिन चाहिए, एट ओरिजिन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार एक्स भी 0 चाहिए, वाई भी 0 चाहिए और जेड भी 0 चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, -6 आई कैप, ठीक है, 8 तुम्हारे पास खत्म, ये तो होगा ही नहीं, ठीक, और 8 तुम्हारे पास क्या जे कैप, यही बचा बस, और तो सारे के सारे गए काम से, है ना, एक्स वाई जेड 0 करके गए काम से। अब इसने कहा कि हमें चाहिए क्या था, हमें तो फोर्स चाहिए। इसने कहा ठीक है फोर्स चाहिए, तो इसने कहा क्या कर सकते हैं, इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो गया 36 प्लस वापस कितना 64, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 न्यूटन पर कूलम होते। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है तो वापस कितना, ये होता है Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, देख लेते हैं जरा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम है पॉइंट चार्ज, है ना, तो उस हिसाब से 2 इंटू कितना 10, ये कितना हो गया 20 न्यूटन फोर्स आ गया। इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपने ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें भी चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर मैंने कोई प्लस माइनस मिस्टेक कर रखी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आई करेक्ट इट, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। मैंने तीनों पार्ट एक ही में करवा दिए, तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे, इसलिए 3 अलग अलग क्वेश्चन की जगह मैंने एक ही में डाल दिया, ताकि आपको पता लग जाए अच्छा ये ऐसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली फिक्स्ड अराउंड द सर्कल, 10 इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे पास इक्वली फिक्स्ड है, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक, 5 और तुम्हारे पास जो है 6, ठीक, 7 तुम्हारे पास 8 और तुम्हारे पास क्या 9 और तुम्हारे पास जो है 10, ठीक है, मतलब इक्वली स्पेसिंग कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली स्पेस्ड फिक्स्ड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r relative to v is equals to 0 at तुम्हारे पास infinity, the electrostatic potential v and the electric field v at the center, ठीक है। अब देखो यार, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे नेगेटिव है, इनका सम तो कभी 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब 100% v तो तुम्हारे पास 0 होगा नहीं, ठीक। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब तुम सेंटर में पूछ रहे हो, ठीक है, तो जितना तुम्हारे पास राइट वाले क्या नाम है इलेक्ट्रॉन इधर से ई ले लेंगे, है ना, इधर से तुम्हारे पास ई ले लेंगे, उसी तरीके से राइट में भी तुम्हारे पास इधर से ई ले लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारे पास कितना जो है 0, ठीक है। इसने का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तुम्हारे पास 0, तो समेशन ऑफ द चार्ज 0 नहीं आया, जैसे पोटेंशियल 0 नहीं हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो उस हिसाब से आंसर क्या बना, उस हिसाब से आंसर बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला इसने पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में एंट्री मार रहा है, ठीक, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया, ठीक। हमसे कहा गया कि दे आर सेपरेटेड बाय 2 mm एंड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास यहाँ पे एंट्री मारा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास जाएगा, ठीक। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर से इधर है, इसने कहा है, इसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारे पास 1000 तुम्हारे पास वोल्ट, ठीक है, डी कितना है, ये तुम्हारे पास 2 mm है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय दिस एंड दिस, फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो यार, इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारे पास यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार ऊपर की तरफ है और फोर्स वापस लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, है ना, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव होगा, वेट अ मिनट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री कर रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, let us just convert the polarity, right? So this is the positive part and this is the negative part, this is the electric field now, and the electron will go into this side, the force would be acting on this side. Wait a minute, the force the force would act in upward direction, right? See, the force would act in upward direction. Now we have been given the value of v, we have been given the value of d, now we need to find out the force. So f is equals to what, f is equals to q into e, q into e is equals to कितना v upon d, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन है
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ओके। और v मतलब 1000 और d का मतलब 2 इंटू 10 की पावर कितना -3, ठीक है। सो ये कितना हुआ 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 6, 0.8 इंटू, ठीक है, 10 की पावर माइनस हमारे पास 3, ये वैल्यू आ गई, ठीक, सॉरी -13, ठीक। अब इसने कहा हमें तो आंसर 8 पे चाहिए, तो 8 इंटू 10 की पावर कितना -14, माइनस हमारे पास जो है 14 न्यूटन, ठीक है। 8 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा तो आपको कितना, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फिर इसने एक और चीज़ पूछ ली है, इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तुम्हारे पास जो है हायर पोटेंशियल रीजन में फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन V2 V1, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी। यार हमको ये पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा गिरता है। तो सपोज ये 2 पॉइंट मान लिए, इसने कहा हाई पोटेंशियल रीजन तुम्हारे पास V2 है, तो इसको V2 कर लिया, और लो पोटेंशियल रीजन तुम्हारे पास कौन है V1, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा गिरता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल पे लेकर के जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो तो होता ही है, यही तो नेचर है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे की तरफ लगता है। तो उसने कहा कि एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तो वापस एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी बढ़ते रहेगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश होती नहीं है, ठीक। एक ये सवाल देखिए, हाँ ये एक बढ़िया सवाल है, इसमें आपको थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आए समझने में, वैसे इतना भी कुछ खतरनाक नहीं है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द फिगर गिवन gives the potential V as a function of the distance through 5 regions and x axis E is equals to होता है माइनस ऑफ तुम्हारे पर dV अपॉन dx, ओके। अगर मैं तुम्हारे सामने कोई पर्टिकुलर ग्राफ बनाऊं, ऐसे मैं कहूँ ये v है और ये x है, तो तुम कहोगे कि dv अपॉन dx दिस विल बी द स्लोप ऑफ बस क्या वी एक्स कर्व, ठीक है, वी एक्स कर्व का स्लोप होगा। उसने कहा हाँ होगा, तो इसका मतलब है कि पूरा खेल इस dv बाई डी का है, ठीक है। तो हमने कहा कि हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ तुम्हारे पास क्या स्लोप ऑफ तुम्हारे पास वी एक्स कर्व, तो ई इज नथिंग बट माइनस ऑफ तुम्हारे पास क्या tan थीटा, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे बात। अब हम बात करते हैं जरा यहाँ पे कैसे निकालेंगे। हमारे पास जोन नंबर 1 है, जोन नंबर 2 है, जोन नंबर 3 है, जोन नंबर 4 है, और इसके बाद हमारा पूरा का पूरा जोन नंबर 5 है, ठीक है। ऐसा हमने जोन 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 करके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इस जगह कौन सा इसमें से सही है, अब देखो जरा यार, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक, ये सी ले लो और ये डी ले लो, ठीक, और इसको ले लो आप ई ले लो, ठीक। अब अगर हम ध्यान से जरा समझेंगे, अगर हम यहाँ पे, तो हम ये कह पाएंगे कि ए बी वाला जो जोन है, सी डी वाला जो जोन है, और ई के बाद कोई भी तुम्हारे पास जो है सपोज एफ जोन यहाँ पे है, ये एफ वाला जो जोन है, ये जोन नंबर 1 है, जोन नंबर 3 है और जोन नंबर 5 है। इनमें तो 100%, इन तीनों में 100% थीटा तो जीरो है, ठीक है। थीटा अगर जीरो है इसका मतलब tan थीटा भी तुम्हारे पास जीरो है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ दी तुम्हारे पास जो है tan थीटा है और ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कितनी है, ये जीरो। आप बात समझे, इन तीनों पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है सीधे सीधे। इसका मतलब ये हुआ कि E1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास E3 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना E5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ तो ऐसा जीरो तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये जो लिखा है E1 E3 E5 लिखा हुआ है ना, तो इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात सही है ना। तो अब यहाँ पे ये दे रखा है, इसने कहा कि क्या E1 लेस देन E3 है, नहीं आप तो गलत ही हो गए, ठीक है ना। और इसने कहा फिर यहीं पे बोला कि E1 लेस देन E3, इसने कहा नहीं आप गलत हो गए। इसने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे E3 E5 और E4 E1 में तुम्हारा वेरिएशन दे रखा है, आप भी गलत हो गए। आंसर तो तुम्हारे पास आने वाला है बी, ये तो देखते ही तय हो गया। अब ये एग्जैक्टली जो E2 लेस देन E4 है, ये कैसे समझेंगे, जरा इसको समझना, ठीक है। नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट फॉर फर्दर क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे, जरा समझो उसको थोड़ा सा ध्यान से। लेट सपोज कि यार ये तुम्हारे पास पर्टिकुलर तुम्हारे पास कोई एक एंगल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई एक एंगल है, ये मुझे पता नहीं इस समय कोई एंगल है। लेट सपोज मैंने इसको कहा थोड़ी देर θ1, राइट। और फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने कहा कि अगर ये पर्टिकुलर जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन कुछ ऐसे बनती, ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन अगर कुछ ऐसे बनती, तो 100% ये वाला जो एंगल होता, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता, ये 100% θ1 इज इक्वल्स टू कितना होता माइनस ऑफ θ2 होता, सॉरी θ1 इज इक्वल्स टू कितना होता, ये हो जाता तो बस 180 माइनस हमारे पास कितना θ2 हो जाता,
है ना, यही होता। ठीक है, तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि या तो ऐसे समझो, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे कहते रहे कि थीटा 1 का जो भी कोई मैग्नीट्यूड होता और थीटा 2 का भी वही कोई मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है, अगर ये पॉइंट तुम्हारे पास कहीं यहाँ पे ई डैश पॉइंट में आया होता तो ऐसा होता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि तो पर डी से सीधे वहां से ई पे पहुंच गए। ठीक है, ई पे पहुंचने की वजह से ये वाला एंगल तुम्हारे पास आया, ये वाला एंगल। ठीक है, अब यार ये तो डेड श्योर है कि जो तुम्हारे पास थीटा 2 डैश है, ठीक है, थीटा 2 डैश जो तुम्हारे पास है वो तो 100% थीटा 2 से तो जाता है। बात समझना, थीटा 2 डैश जो है वो 100% तुम्हारे पास थीटा 2 से तो 100% ज्यादा ही है, कम तो नहीं है सर किसी व्याप में, है ना, कम तो नहीं है, वो तुम्हारे पास ज्यादा ही है किसी व्याप में। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास थीटा 2 डैश होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना लिया। उसने कहा हाँ ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा 2 डैश होगा तो ये वाला एंगल, अब जैसे मान लो कि थीटा 1 अगर तुम्हारे पास 45 होता, ठीक है, और अगर ई डैश पॉइंट कंसीडर करते तो थीटा 2 भी तुम्हारे पास कितना 45 होता, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, लेकिन लेकिन जो थीटा है ये होता, और अगर ये अगर ऐसा होता, अगर एंगल ऐसा हुआ आया होता तो हम ये कहते कि तुम्हारे पास जो ई पॉइंट पे एंगल बन रहा है 180 माइनस तुम्हारे पास 45, इसकी वैल्यू कितनी आती, 135 आती। अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जो है tan का ग्राफ जानते हैं। ठीक है, जरा कुछ समझना, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास tan का ग्राफ है, tan का ग्राफ है तुम्हारे पास ये, ठीक, यहाँ पे हमने बनाया। ठीक, फिर ये तुम्हारे पास हमने इधर की तरफ भी यहाँ पे जरा बना देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे ये, ठीक, अब जरा समझना इसको क्या बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारे पास आग आग ये तुम्हारे पास आगे गए, ठीक, ये और ये तुम्हारे पास ऐसे बना दिया। ठीक, फिर हमने क्या बना दिया, फिर हमने इसको टारगेट जो है ऐसे बना दिया यहाँ पे। अब इन बात को यहाँ पे समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मेरे को ये दो बातें क्लियर हैं कि थीटा की वैल्यू जब 90 और तुम्हारे पास 0 के बीच में होती है तो tan थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। थीटा की वैल्यू जब 180 और 90 के बीच में होती है तो tan थीटा की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ये बात आपको समझनी होती है। ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव होता है 0 से लेकर के 90 वाले जोन पे। ठीक है, और तुम्हारे पास 90 से लेकर 180 वाले जोन में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो साफ साफ दिख ही रहा है ये पॉजिटिव जोन है और ये कैसा है, नेगेटिव जोन। ठीक, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो बात यहाँ पे एंगल की है, तो एंगल कौन सा है, ये मेजर एंगल है, ये वाला मेजर एंगल है, ये वाला मेजर एंगल है। ठीक है, और एक ये वाला मेजर एंगल है। ठीक, अगर ई डैश पे मामला कंक्लूड हुआ होता, ठीक है, तो थीटा 1 की जो वैल्यू है वही थीटा 2 की वैल्यू होती। ठीक है, और जब थीटा 2 की वैल्यू यही होती तो नीचे एक तुम्हारे पास कर्व होकर के आया होता जिसकी एंगल 135 होती। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है तो तुम कहोगे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है पता है, ये होती है +1। tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, tan 135 की वैल्यू होती है तो बस -1। अगर ये तुम्हारे पास जो है ई डैश पे ना होकर के ई पे आया है तो 100% तुम्हारे पास ये जो एंगल है तुम्हारे पास थीटा 'डबल डैश, इस थीटा 'डबल डैश की वैल्यू 100% कैसे निकलेगी, 180 माइनस तुम्हारे पास थीटा 2 डैश से निकलेगी। इसने कहा थीटा 2 डैश तो 45 से ज़्यादा है, 100% ये बात श्योर है, थीटा 2 डैश 45 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि थीटा 1 डैश 100% जो है 100% जो है ये 135 से कम है। अगर 135 से कम है तो समझना, ये रही 135 वैल्यू और ये रही 45 वैल्यू। 135 पे जो वैल्यू है वो तब कितनी है, -1 है। अगर 135 से भी कम एंगल तुम्हारे पास है तो ये वैल्यू तुम्हारे पास और नीचे चली जाएगी। लेट सपोज हो जाएगी -2 चली गई। कहाँ चली गई, -2 चली गई। अब क्या करें हम लोग, अब हमने कहा कि E2 वाले जोन में तो हमें मतलब है tan ऑफ तुम्हारे पास थीटा 2 से, और जो E4 वाले जोन है, E4 वाले जोन में हमें मतलब है तुम्हारे पास tan ऑफ तुम्हारे पास कितना थीटा 'डबल डैश है। थीटा 2 अगर तुम्हारे पास tan 45 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी जो कि 135 से कम है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट सपोज तुम्हारे पास जबकि हाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ 135 से तो कम है। ठीक है, तो उसने कहा कि E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, E2 की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ तुम्हारे पास 1। ठीक है, देन 45 की वैल्यू -1। ठीक है, और तुम्हारे पास E4 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास 2। तो ये कितनी आ गई, +2, और ये कितनी आ गई -1। जिससे साफ साफ पता लगता है कि E2 तुम्हारे पास जो है वो E4 से कम। तो इस हिसाब से आंसर तुम्हारे पास क्या बनेगा, बी बनेगा।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सोचने वाला तो एग्जैक्टली नहीं था, पर फिर भी आपको ये बात को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को करें, जैसे आपको सब साफ पता लग गया था यार कि E1, E3 और E5 बराबर है, जो कि हमें साफ साफ पता लग रहा था कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो तुरंत गलत हो गया था, ऑप्शन नंबर डी भी देखते ही गलत हो गया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, पर E2 E4 से कम कैसे होगा ये जरूर आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये रहे 15 सवाल, इनको करिए, फिर आपको अगला लिस्ट मैं जल्द से जल्द निकालता हूँ।